Good morning, students. Today our topic is self concept. तो self concept का क्या मतलब होता है? Self concept is defined as the way in which we think our preferences, our beliefs, our attitudes, our opinions arranged in a systematic manner, and also how we should behave and react in various roles of life. So, self concept is a complex subject as we know the understanding of someone's psychology, traits, abilities sometimes are really difficult. तो क्या है सेल्फ कंसेप्ट होता है जो हम सोचते हैं कि हमारी क्या प्रेफरेंसेस हैं, हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारे क्या बिलीव्स हैं, ठीक है। तो हर एक की जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है. कंज्यूमर बाय एंड यूज प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड पैट्रोनाइज रिटेलर्स whose personalities or image relate in some way or other to their own self image. तो क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम या तो किसी से इंस्पायर होते हैं, ठीक है, या जिसका ये प्रोडक्ट है उसी से उसकी पर्सनालिटी या उसकी इमेज से इंस्पायर होके हम ये प्रोडक्ट खरीदते हैं. Traditionally, individuals are considered to be having a single self-image which they normally exhibit. Such type of consumer are interested in those products and services which match or satisfy these single selves. तो ट्रेडिशनली क्या है, इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक सिंगल ट्रेट को लेके ना प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं. However, as the world became more and more complex, it has become more appropriate to think of consumer as having multiple selves. तो क्या है, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको उसका एक पहलू नहीं देखना, बहुत सारे पहलू देख के फिर खरीदना है. तो ये कुछ आगे है व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट एंड आगे उसके हैं मेजर कंसेप्ट्स, ठीक है. Aspects. The below are some of the major aspects of self-concept. Self-concept is organized. We all have various views about ourselves. We all may think we are kind, calm, patient, selfish, rude, and what not. It doesn't matter what perception you have about yourself, but the one perception that facilitates all these insight is organized self-concept. When a person believes in something that matches his self-concept, he sticks to his view and does not agree to change the same. And even if does, it takes a lot of time. तो क्या है कि सेल्फ कंसेप्ट जो है ये ऑर्गेनाइज्ड है. मैंने जो सोचा कि मैं जैसी भी हूँ मैं वैसी ही हूँ, मैं चेंज नहीं होंगी किसी के लिए. तो जब हम किसी चीज़ के ऊपर विश्वास रखते हैं ना तो हम चेंज नहीं होते. बट हाँ, अगर कोई हमें चेंज करना चाहता है हम हो सकते हैं चेंज, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. सेल्फ कंसेप्ट इज लर्नड. It is believed that self-concept is learned and no person is born with a self-concept. तो क्या है, सेल्फ कंसेप्ट हम लर्न करते हैं, ये हम सीखते हैं जैसे जैसे हम छोटे होते से आगे बड़े होते हैं, ठीक है. जब हम सोशली इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, वी आर द वन हु शेप और ऑल्टर आवर सेल्फ कंसेप्ट. And it's quite natural that we may have a self-concept different for ourselves as compared to what people think about us. तो मैं अपने बारे में कुछ और कंसेप्ट रख सकती हूँ, पर कोई दूसरा इंसान मेरे लिए कुछ और सोच सकता है. If an individual thinks he is very generous and helpful, it may not necessarily be the case with other person. They may see him as a selfish person. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोचती हूँ कि हाँ भी मैं तो बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं सबकी हेल्प करती हूँ, बट कोई और इंसान सोच सकता है कि भी ये तो बड़ी सेल्फिश है, तभी हेल्प करती है जब इसको मतलब होता है. तो सेल्फ कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट सेल्फ कंसेप्ट इज डायनेमिक. Self-concept in life is not constant and it may change with instances that take place in our life. When we face different situations and new challenges in life,
Our insight toward things may change. We see and behave according to the things and situations. तो सेल्फ कंसेप्ट जो है वो चेंज होता रहता है विद टाइम टू टाइम. जब आप छोटे होते हो तब आप सोचते हो कि यार जॉब करते होते तो कितना अच्छा होता, सैलरी मिलती. अब हम जब बड़े हो जाते हो, जब जॉब करते हो तो सोचते हो बचपन ही अच्छा था. तो ये आपके सेल्फ कंसेप्ट हैं, ये चेंज होते रहते हैं और ये सिचुएशंस पे चेंज होते हैं. कभी कभी बहुत वर्स्ट सिचुएशंस होंगी तो आपका कंसेप्ट ही लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में चेंज हो जाएगा. आगे सेल्फ कंसेप्ट इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट्स. एक है सेल्फ इमेज, एक है सेल्फ एस्टीम और लास्ट है आइडियल सेल्फ. ठीक है, तो सेल्फ इमेज क्या होता है? सेल्फ इमेज होता है जैसे हम अपने आप को खुद को देखते हैं. सेल्फ इमेज इज द वे वी सी आवरसेल्व्स. सेल्फ इमेज इंक्लूड्स व्हाट वी नो अबाउट आवरसेल्व्स, जैसे कि हाँ मेरे लंबे बाल हैं, मेरी हाइट इतनी लंबी है, मेरी आईज का कलर ब्राउन है, ये सब चीज़ें. आर सोशल रोल्स, जैसे आई एम अ डॉटर, ठीक है, देन आई एम अ सिस्टर. एंड आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जैसे हमारी पर्सनैलिटी है, जैसे आई एम लाइक ऑलवेज हैप्पी, स्माइलिंग, आउट गोइंग. ठीक है, सेल्फ इमेज डजेंट ऑलवेज मैच रियलिटी. मैं ऐसे सोच सकती हूँ बट ज़रूरी नहीं है कि ये रियलिटी है. ठीक है, कभी कभी हम क्या है कि इन्फ्लेटेड परसेप्शन, हम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही परसीव कर लेते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. तो ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है. ठीक है, and an individual may have a more positive view of certain aspect of the self and a more negative views of other. हमेशा ऐसे ही होता है, हम अपने बारे में हमेशा यही सोचेंगे कि मैं तो भी पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छा हूँ, बट हम दूसरे के बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और उनके बारे में ज़्यादा नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं. Next is self-esteem. Self-esteem is the value we place upon ourselves. Individual level of self-esteem are dependent on the way we evaluate ourselves. Those evaluation incorporate our personal comparison to others as well as other responses to us. तो self-esteem होता है, it's like self-respect, कि हाँ मेरी क्या value है, ठीक है, और मेरी जो वैल्यू है उसको इवैल्यूएट कैसे करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, मेरे रिस्पॉन्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा. दोज इवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट अ पर्सनल कंपैरिजन टू अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे साथ कोई कंपैरिजन कर रहा है तो ये मुझे देखना है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरी सेल्फ एस्टीम वहाँ कहाँ लाई करती है, मेरी क्या वैल्यू है. तो ये वैल्यू हम खुद बनाते हैं अपनी. आइडियल सेल्फ इज कि हाँ कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम सोचते हैं कि हम यार अपने में ये चेंजेस लेके आएंगे. सो देयर इज ऑफन अ डिफरेंस बिटवीन वन सेल्फ इमेज एंड वन आइडियल सेल्फ. दिस इन कॉन्ग्रेटी कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट वंस सेल्फ एस्टीम. तो क्या है कि मैं ये सोच सकती हूँ कि यार ये मैं किसी को एज अपना आइडियल सोच सकती हूँ कि मुझे इसके जैसा बनना है. ठीक है, तो ये मेरी सेल्फ एस्टीम को नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकता है कि यार मैं तो ऐसी बन ही नहीं पा रही हूँ, मैं ऐसी बन ही नहीं पा रही हूँ, मेरी वैल्यू ही नहीं बढ़ रही है. ठीक है, तो आपको बट नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव ही रहना है. और एक अच्छा, अगर आप किसी को आइडियल मानते हो तो उनके जैसा बनो भी. ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.